میری 4 بیویاں بانج تھی اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا کہ یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں بہت امیر تھا اور 4 شادیاں کر لی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ طوائف پیسے لے کر بچہ پیدا کر کے دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاپ کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بظاہر حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا، بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مین میں سے ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے آئی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزل عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کی دلائل کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے میں جانے کا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی بے باک سے جملے بول رہی تھی، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش کے تو دیکھو، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر خوفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی؟ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتاتا آ رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کہ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست نعمان کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، نعمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کا مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندنی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور کانوں کے دھنوں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے تھے جو الگ سے ہی اپنا ایک راگ بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک ادھیر عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہوئی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی، تو وہ کہنے لگا، ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ اسے کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید نعمان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک نعمان سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ نعمان نے کہا، میرا دوست ہے، اسے حسنہ سے ملواؤ، اولاد چاہیے اسے۔ اس نے ادھر میرے آنے کی فوراً اصل وجہ بتا دی۔ اس عورت نے پہلے گلدان میں پان کی پیپ پھینکی، پھر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹھو میاں، یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی نا تم سے؟ میں وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں تخت کے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اس لیے 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر نعمان کو دیکھا تو مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ 15 لاکھ۔ میرے جیب سے اپنی چیک بک نکالی اور 15 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی جب میں نے اسے 15 لاکھ کا چیک دیا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے او چنبیلی کہاں مر گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سانولی سی لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش تھی۔ کہنے لگے، حسنہ کا گاہک ہے، اسے کہو کہ تیاری پکڑ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ چنبیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیر کرتی، میں نے اس سے کہا کہ پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے۔
मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चंबेली साहिब को हुस्ना का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी। आए साहब। मैं खड़ा हो गया और इस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। इस औलाद के असूल की ख्वाहिश ने मुझे कहां से ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज या नाजायज की थी। मेरे लिए जायज है और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो इसने कहा कि कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सची सवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बस एक नजर देखा, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और इसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहिब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? इस लड़की की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी जानिब देखा जो मेरे लिए बिल्कुल ना महरम थी। देखिए, मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से इसका घूंघट उठाया और जैसे ही इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फुफोजात थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहां से मैंने आमना की इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बेबी बांझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो बहुत रही, फिर इसने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जैसे 5-5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मेरी शादीशुदा जिंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था। हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता है तो समझ में आती, चारों बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। मैं कैसे इनमें से किसी एक के साथ ज्यादती करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए। मैंने इसी सिलसिले में जब नुमान से बात की तो इसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूंगा। वो कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नुमान की बात सुनकर मैंने कहा कि इस वक्त ही तो इससे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नुमान की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। नुमान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ इससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का असूल इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन जाहिर है मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था। इन्हीं दिनों में अपनी औलाद के असूल के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाजत ली और ज्यादा वक्त पहली बीवी को ही देने लगा। उससे 3 सौतने भी इसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मेरे शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई तो बेसहारा। मैंने
शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि इन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया इससे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि नुमान की बात मान लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए इसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। इसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर इस कोठे पर नहीं रुका। नुमान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि अली तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से इस बाज़ारे हुस्न से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान के आने का इंतजार नहीं किया था। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता में बेचैनी से काटता गया। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बददस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी, अली क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नजर इसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नजर इस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो बीमार रहने लगी थी। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई सोलियां फटकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई है। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त इसी के पास गुजारता। मेरे कंधे पर इसने सर रख दिया तो मैंने भी इसे अपने हिसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊं, वहां तुम्हारा इलाज करवाऊं। मेरी बात पर कहने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है। मेरी इलाज का बसा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। इसकी बात पर मैंने इसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इसी घर में एक कमरे में रह लूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने हुस्ना का चेहरा घूमने लगा। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता, पहले ही तुम पर सोतने ला चुका हूँ, शायद इस बीमारी से तुम 2-4 हो गई। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझती थी कि आप साहिबे औलाद हो जाएं, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात को इस तवाइफ खाने से क्यों भागकर वापिस आ गए? इसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताई मेरी बात? इसने गहरी सांस ली और कहने लगी, वो छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। इसे देखकर तो मुझे इस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इस कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहां से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी ना थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद इस लड़की से भी ज्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी कि इसी से निकाह कर ले अली। इसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो तुम? एक तवाइफ कब किसी से शादी करती है? फिर इसकी मालकर मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, इसके पास जाते हुए मुझे शर्म आई थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप इसे इस कोठे से आजाद करवाने में कामयाब हो जाएं तो अल्लाह आपको साहिबे औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया था। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचकर मैं इससे निकाह कर लेता। क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, हुस्ना भी इस कोठे से बच जाए। मैं अगले ही रोज कोठे पर पहुंच गया। मेरी नियत इस लड़की को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक इस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी इस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे हुस्ना से निकाह करना है और इसके बाद इसका इस कोठे पर कोई ताल्लुक नहीं। वो लालची औरत थी, इसलिए फौरन मान गई। मैंने पहली बीवी को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। वो मेरे ही घर में कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं इसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन इसकी हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश पूरी करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में हुस्ना से निकाह कर लिया और इसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महल नुमा घर देख रही थी। अली साहिब, ये सब तुम्हारा है?
तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ साथ तो बहुत कुछ खरीद कर रखा है। मैं उम्र में इससे बहुत ज्यादा बड़ा था। इसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं इसका गाहक नहीं बल्कि शोहर था। मैंने अपनी तीनों बीवियों से हुस्ना का तारुफ करवाया, फिर इससे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वह इससे मेरे कमरे में छोड़ आए। वो कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बाकिरदार नेक सीरत की मालिक थी और ये लड़की इसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। इस वक्त तक हुस्ना सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़कियां इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर इसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हुस्ना मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात से कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर इससे कहा कि वो नाश्ता कर ले, रात में इसने कुछ ठीक से नहीं खाया। ये कह के मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हुस्ना भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने हुस्ना से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं किया। हाँ, इससे अच्छे से बातचीत जरूर की थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझसे कहने लगी, साहिब मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्या? मैं इसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे इसकी ये बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया। इसकी बात पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा और वो मजीद ऐसे ही कुछ बोलती तो शायद मैं इसके मुंह पर थप्पड़ ही जोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा लहजा बुलंद हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी, हम सब ऐसे ही बातें करते हैं साहिब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रुख देखे, नोच खाने वाले, जुनूनी बर्बियत का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझे बख्शता नहीं था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिर गए थे। फिर इसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखें तो आप मेरे साथ ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा है, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सब में से अलग ही हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बहरहाल एक रात में हुस्ना की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया। इसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल छुरी से कटने लगा था। 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल गैर आसानी थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ हुस्ना के जख्म भी भरने लगे और मुंह से कहती है, आपने मुझे बदकार को निकाह के रिश्ते से मुतब्बिर बना दिया। वो मेरे अखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जुबान भी ठीक होगी। वो मुंह से अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। हुस्ना उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने हुस्ना का बहुत ख्याल रखा, बल्कि इसे बिस्तर से पांव तक नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की
खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। इस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता था जिस पर ये सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर तो हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो इसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।